So friends, today we are going to deal with the last topic of Unit 1, Indian Contract Act 1872. We are currently dealing with the 6th chapter as per our syllabus of Veer Narma South Gujarat University. Name of the chapter is Legality of Object. Also, it is known as Lawful Object. Today, friends, we are going to discuss the question, which is very important question for the final exam also. Let's try to understand. We have already discussed the unlawful objects as per section 23, and in that the last point is basically deals with the point of this question, that is any objects which are immoral or which are opposed to public policy, then such objects, if are kept in the contract, such contracts are void. The object is void, the contract is void. So that is what we are going to discuss in detail, that fifth object which is unlawful as per section 23 in detail. The contract opposed to public policy is illegal. The contract opposed to public policy is illegal. Discuss this statement. Or it can be asked straightforward to you. Discuss the agreements which are against the public policy. Discuss the agreement which are against the public policy. Straightforward, they can ask you the question. So, as friends, before starting this topic, let us first try to understand what is known as public policy. What exactly is public policy first? It is not an economic term, sir. So don't write in economic sense. It is not an economics subject. It is a mercantile law subject. So don't write in economics sense this answer. An agreement which is injurious to the public or is against the interest of society is said to be opposed to public policy. So in simple words, whenever an agreement is harmful to the public welfare or interest, it would be regarded as void, as it is against public policy. सर ऐसी एग्रीमेंट्स नहीं करनी है which is against society interest, which is against society interest, यानी समाज के हित में ना हो ऐसी समझौती हमें बिल्कुल नहीं करनी। समाज की फेवर में हो वैसी समझौती करनी है, लेकिन समाज के अगेंस्ट में हो वैसी हमने समझौती यानी कि एग्रीमेंट नहीं करनी है। ऐसी एग्रीमेंट बिल्कुल नहीं करनी है जिससे पब्लिक को भी यानी कि जनता को भी नुकसान हो। सो ऐसी एग्रीमेंट से हमें दूर रहना है। सच एग्रीमेंट्स आर ट्रीटेड एज ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये समाज के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, इट इज अगेंस्ट सोसाइटी, इट इज अगेंस्ट पब्लिक। तो हमें इनसे दूर रहना है। ये जन कल्याण को ठेस पहुंचाने वाली एग्रीमेंट्स नहीं करनी है आपने। पब्लिक वेलफेयर को ठेस पहुंचाए वैसी समझौती भी नहीं करनी है। अगर ऐसा हम कर रहे हैं सर, तो वो एग्रीमेंट्स को क्या माना जाएगा सर? सच एग्रीमेंट्स आर नोन एज वॉइड एग्रीमेंट्स। दे आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी बिकॉज दे आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। वॉइड एग्रीमेंट क्यों माना जाएगा? बिकॉज दे आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। वॉइड एग्रीमेंट क्या है सर? which are not enforceable by law. What agreements means? Agreements which are not enforceable by law means हम इसको कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते, करेंगे तो भी जजमेंट हमारे फेवर में नहीं आएगा अगर हमने ऐसी कोई एग्रीमेंट की हो जो समाज के हित में ना हो, जनता के हित में ना हो। तो ऐसी कुछ एग्रीमेंट्स है जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वन बाय वन आपके सामने आती जाएगी। लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑफ सच एग्रीमेंट्स व्हिच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जो समाज के हित में नहीं है वैसी एग्रीमेंट्स नहीं करनी चाहिए, हमें उससे दूर रहना चाहिए। वी शुड अवॉइड बाय डूइंग सच एग्रीमेंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज ट्रेडिंग विद एन एनिमी। In detail, an agreement between the citizens of two countries at war with each other is void. वॉर की स्थिति में अगर हम किसी व्यक्ति के साथ, जिस कंट्री के साथ हमारा वॉर चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो, उसके साथ हमें कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उस कंट्री के नागरिक के साथ हमें व्यवहार नहीं करना चाहिए, एग्रीमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर हम उसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं ड्यूरिंग वॉर सिचुएशन, इट इज सच एग्रीमेंट्स आर कंसिडर एज वॉइड, इलीगल एंड इनऑपरेटिव। यानी ये अमान्य हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, रद्द बातल, गैर कायदेसर અને इनऑपरेटिव माना जाएगा इसको।
यानी उसको हम लीगली चैलेंज नहीं कर पाएंगे। ऐसी एग्रीमेंट हुई है न हुई बराबर मानी जाएगी सर। इवन परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम एन एनिमी कंट्री इज कंसिडर एज अनलॉफुल। अगर हम किसी अन्य कंट्री से परचेस कर रहे हैं गुड्स को, तो उसे भी सर एक तरीके से अनलॉफुल माना गया है, खास करके एनिमी कंट्री हो तो। इट अप्लाइज टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स विच टेंड्स टू हेल्प द एनिमी। कोई किसी भी स्वरूप में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और आप उस कंट्री को एक तरीके से हेल्प कर रहे हो, ऐसा माना जाए, ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है कि आप इकोनॉमिकली उसको हेल्प कर रहे हैं, फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं उस कंट्री को, तो सर वैसी एग्रीमेंट्स को हम वॉइड मानेंगे, इलीगल मानेंगे। All agreements, all contracts made with the citizen of allied countries, unless made with the permission of government, are illegal on the ground of public policy. ऐसी कंट्रीज के साथ, ऐसी कंट्रीज के सिटीजन के साथ अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हो जिसके साथ हमारा युद्ध चल रहा हो या युद्ध होने की संभावना हो, तो उससे एक ही तौर पे उसको वैलिड माना जाएगा अगर सरकार परमिशन देती है। सरकार भी बहुत मुश्किल से परमिशन आपको देगी, बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा हो तो शायद आपको परमिशन मिले तो, डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट। सो उसे भी इलीगल माना गया है। So it depends on the government. If government wants to permit, it can permit you to save from the big loss of a particular company. कंपनी को अगर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा तो शायद उसके फेवर में डिसीजन लिया जाए, लेकिन फिर भी ये मुश्किल डिसीजन होगा। So on the basis of illegality, such agreements will be considered as opposed to public policy. सो ये तो युद्ध समय की बात हुई। युद्ध समय के दरमियान आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है दूसरे सिटीजन्स के साथ। जिस कंट्री के साथ हमारा युद्ध चल रहा हो, उस कंट्री के नागरिक के साथ हमें बिल्कुल व्यवहार नहीं करना है। अगर हम करते हैं तो हम एक तरीके से गद्दार वाला काम कर रहे हैं। वी आर हेल्पिंग देम फाइनेंशियली, तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं ऐसा माना जाएगा। तो हमें ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है जिससे दुश्मन देश की कंट्री को सपोर्ट मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। अब ये तो ड्यूरिंग द वॉर वाली सिचुएशन की डिस्कशन की हमने। अब ऐसा भी तो हो सकता है जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया तब कोई वॉर ना हो और बाद में वॉर डिक्लेयर हुआ हो, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे सर? लेट्स हैव द सेकंड सिचुएशन। इन केस वेयर एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू एट द टाइम ऑफ पीस एंड लेटर ऑन वॉर ब्रेक्स आउट बिटवीन द टू कंट्री, द ऑब्लिगेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सस्पेंडेड टिल द एंड ऑफ द वॉर। अब ऐसा होता है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब कोई कोई वॉर नहीं था, शांति थी, पीस था, कोई वॉर नहीं था। लेकिन पीछे से वॉर डिक्लेयर हो गया। लेटर ऑन वॉर डिक्लेयर्स, वॉर ब्रेक्स आउट बिटवीन द टू कंट्रीज। जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी, लेकिन बाद में वॉर डिक्लेयर हो गया। अभी हमारा परफॉर्मेंस देना बाकी है। कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म का हो सकता है, 3 महीने 6 महीने का। अभी हमारा परफॉर्मेंस देना बाकी है। So the obligation of performance of the contract is suspended till the end of the war. तब उस सिचुएशन में उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या मानेंगे, उसका क्या सिचुएशन होगा, उसे हम किस स्वरूप का कॉन्ट्रैक्ट माने सर? तो सर उस कॉन्ट्रैक्ट को तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा, तब तक के लिए जब तक वॉर खत्म ना हो। अगर शॉर्ट टर्म का है तो हम बाद में उसको हम फॉलो अप कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का वॉर हो तो वॉर 1 महीने 2 महीने 3 महीने में खत्म हो जाता है, तो हो सकता है हम बाद में उसको परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन वॉर अगर लॉन्ग टर्म का रहा, लॉन्ग ड्यूरेशन का रहा, लॉन्ग रन का रहा, 1 साल 2 साल तक चला, तब उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर वॉइड मान लिया जाएगा। शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन होगा वॉर का, तो हम बाद में सरकार की परमिशन से उसे फुलफिल कर सकेंगे, कंप्लीट कर सकेंगे। वी कैन परफॉर्म अवर ऑब्लिगेशन इफ गवर्नमेंट परमिट्स आफ्टर द वॉर एंड्स। Second point, normally it is asked in short question. So let's try to understand what is maintenance contract and what are property contract. So maintenance contract में ज़्यादातर स्टूडेंट गलत गलत लिख देते हैं, पढ़ाई नहीं होता है तो गलत गलत लिख देते हैं। तो आप खास ध्यान रखना, जैसे तैसे नहीं लिखना है एग्जाम में। यू हैव टू फॉलो इट्स कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के आपने लिखना चाहिए। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, पहले मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की चर्चा पे चलते हैं। Where a person agrees to maintain a suit in which he has no legal interest, the proceedings is known as maintenance. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। किस चीज में हेल्प कर रहा है? टू मेंटेन अ सूट। सूट यानी वो तेनु सूट करदा वो सूट नहीं,
यहाँ सूट का मतलब है केस करने की बात हो रही है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पे केस करना हो तो व्यक्ति हेल्प करती है, उसको फाइनेंशियली हेल्प कर रही है। इस हेल्पिंग नेचर के पीछे उसका कोई लीगल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जो बंदा दूसरे बंदे को केस करने के लिए हेल्प कर रहा है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, तू केस कर, जो भी खर्चा होगा मैं मेंटेन कर लूँगा, मैं सँभाल लूँगा, इस तरीके से प्रॉमिस करता है, जिसमें उसका कोई लीगल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। उसको कोई बेनिफिट नहीं होना चाहिए। जो हेल्प कर रहा है, जो केस मेंटेन कर रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, उसमें उसका कोई लीगल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इस सिचुएशन को, इस कार्यवाही को, इस प्रोसीडिंग्स को हम क्या मानेंगे सर? इट्स अ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। आपने पूरे केस को मेंटेन किया एक तरीके से जिसमें आपका कोई हित नहीं है, लीगल इंटरेस्ट नहीं है, नो लीगल इंटरेस्ट, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल समझते हैं। X files a suit means X files a case against Y to recover rupees 60,000. X files a case against Y to recover rupees 60,000 and Z promises to maintain the case knowing well that Y has to pay the amount to X. X नाम का व्यक्ति क्या कर रहा है सर? वो Y के ऊपर केस कर रहा है। क्यों केस कर रहा है? X ने Y से 60,000 रिकवर करने, यानी X ने Y को मान लीजिए लोन दी थी, वो रकम उसको नहीं मिल रही है, इसलिए उसने उसके ऊपर केस किया है। रिकवरी ऑफ डेप्ट, रिकवरी ऑफ लोन, यूं समझ लीजिए, उसके लिए केस किया है। अब X ने Y पे केस किया है, लेकिन मदद कौन कर रहा है केस करने के लिए सर? Z। Z इज मेंटेनिंग द होल सूट, यानी केस करने के पीछे जो भी खर्चा हो रहा है वो Z मेंटेन कर रहा है X के लिए। यानी X खर्चा नहीं कर रहा है, खर्चा उसके लिए, उसे एक व्यक्ति हेल्प कर रहा है Z। न्याय दिलवाने के लिए Z उसको हेल्प कर रहा है। हो सकता है X के पास केस करने के लिए पैसे ना हो, इसलिए इस तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट शायद Z X को दे रहा है, यूं समझ लीजिए। अब Z जो मदद कर रहा है, अगर Z को अच्छे से पता है कि X ने रियल में जेन्युइनली Y से 60,000 लेने हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। आई रिपीट, Z को अगर अच्छे से पता है कि X ने सच में जेन्युइनली Y से 60,000 लेने हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। लेकिन Z अगर X को पैसे देता है केस करने के लिए कि मैं तुझे 10,000 रुपए, 20,000 रुपए दे रहा हूं, जो भी खर्चा होगा वो सब देता हूं, तू Y पे केस कर और हम Y को परेशान करेंगे इस तरीके से। परेशान करने का आशय हो, टू एनॉय द अदर पर्सन, अगर ऐसा इरादा है, ऐसा इंटेंशन है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। तो यही समझना है किस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, किस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। यहाँ जो एग्जांपल रखा गया है, जहाँ पे Z is trying to maintain the overall expenses of X for filing case against Y, the overall expenses are maintained by Z। तो यहाँ उसे अच्छे से पता है, knowingly well, तो यहाँ उसको अच्छे से पता है, तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना है। सच अ सूट वेयर Z हैज नो इंटरेस्ट, Z का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, इज ऑल्सो कॉल्ड, इज नोन एज मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं, बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट डिफरेंट मैटर है और चैम्पर्टी कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट मैटर है। अब चैम्पर्टी कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं। चैम्पर्टी इज अ बार्गेन, मीन्स डील, सौदा है एक तरीके से। देखते हैं ये सौदा कितना खरा खरा है, ये सौदा खरा खरा। चैम्पर्टी इज अ बार्गेन, it's a deal whereby one party is to assist, means is to help another in recovering property and in turn is to share in the process of the action। अब यहां पे डील की जा रही है, इट्स अ डील। डील क्या है सर? एक बंदा, वन पार्टी विल असिस्ट अनदर, एक बंदा दूसरे बंदे को मदद करेगा। अब फ्री में मदद नहीं करेगा, यहाँ वापस एक डील करी जा रही है, क्यों ना हम एक सौदा करें, तो एक सौदा किया जा रहा है। सौदे में क्या किया जा रहा है? जो भी प्रॉपर्टी रिकवर होगी, जो भी प्रॉपर्टी रिकवरी हो रही है केस करने से, उसमें से मुझे हिस्सा चाहिए। द अदर पर्सन वांट अ शेयर इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स, इन द प्रोसेस ऑफ द लीगल एक्शन। केस किया जा रहा है, केस में से जो भी मिलकर जो भी प्रॉपर्टी रिकवर होगी उसमें से वो शेयर मांग रहा है, ऐसा डील किया जाए। यानी यहाँ पे शेयर मांगा जाएगा, मदद की जा रही है, लेकिन यहाँ पे मदद
शेयर मांगने से, हिस्सा मांगने से की जा रही, यानी उसका इंटरेस्ट है। हियर द पर्सन इज हैविंग इंटरेस्ट इन द प्रोसीडिंग्स, उसका फायदा है, फ्री में मदद नहीं कर रहे, वहां फ्री में मदद हो रही है, कोई शेयर नहीं लिया जा रहा है। मेन डिफरेंसेस, चैम्पर्टी में द पर्सन इज नॉट डिमांडिंग फॉर एनी शेयर, बट इन केस ऑफ चैम्पर्टी कॉन्ट्रैक्ट द पर्सन इज डिमांडिंग फॉर शेयर। अब ये देखना होगा जो शेयर डिमांड किया जा रहा है, जो हिस्सा डिमांड किया जा रहा है, जो भाग मांगा जा रहा है, वो रीजनेबल है या अनरीजनेबल है। अगर रीजनेबल शेयर मांगा जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अगर अनरीजनेबल शेयर मांगा जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। तो किस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, किस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ये भी समझना जरूरी है। ये ज्यादातर जज करते हैं कोर्ट के अंदर, हम फिर भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर फाइल्स अ सूट अगेंस्ट एस टू रिकवर ₹40,000। आर जो है एस के ऊपर केस करके 40,000 रुपए की रिकवरी की प्रोसेस कर रहा है। टी प्रोमिसेस आर द कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स। टी जो है पूरा खर्चा आर को देने के लिए तैयार है, जो भी कानूनी खर्चा हो रहा है केस करने के पीछे, जो भी कार्यवाही के पीछे, कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही के पीछे जो भी खर्चा हो रहा है, वो टी आर को देने के लिए तैयार है, प्रॉमिस करता है, लेकिन इन टर्न डिमांड्स 50% ऑफ द अमाउंट इफ आर सक्सीड्स इन द सूट। सारा खर्चा टी उठाने के लिए तैयार है, आर को सारा खर्चा देने के लिए तैयार है, जो भी खर्चा हुआ, लेकिन रिटर्न में क्या डिमांड कर रहा है, जो भी रिकवरी हो रही है उसमें से 50% हिस्सा मेरा। मंजूर हो तो बोलो। अगर मंजूर कर लिया जाए तो ये चैम्पर्टी कॉन्ट्रैक्ट है, यहां 50% डिमांड किया गया है, यानी 40,000 में से 20,000 तो टी को दे देने हैं, आर को मिलेंगे 20 और टी को मिलेंगे 20। ये अनरीजनेबल अमाउंट माना जाएगा सर। 50% का हिस्सा मांगना सर अनरीजनेबल अमाउंट माना जा सकता है, और इसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर किया जा सकता है। So depending on the circumstances, the contract may be void or contract may be valid, will be judged by the court of law. अगर यहाँ पे 50% की जगह 5% या 10% मांगा गया होता तो रिजनेबल माना जा सकता है। 5%, 10%, यानी 40,000 में से मान लीजिए 5,000 या 7,000, 8,000 जैसी थोड़ी नॉमिनल रकम मांगी गई होती तो यही सिचुएशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता था। ये तो 40,000 है, मान लीजिए 40 लाख हो या 50 लाख हो, 50 लाख की प्रॉपर्टी हो, 50% मांग गया तो 25 लाख आपकी प्रॉपर्टी में से सामने वाले को आपको देने पड़ेंगे, तो सर वो अनरीजनेबल अमाउंट हो गई सर, बड़ी रकम हो तो। और भी समझ में आ गया होगा। अंडर इंग्लिश लॉ, इंग्लिश लॉ क्या कह रहा है, बोथ दिस एग्रीमेंट्स आर डिक्लेयर्ड इनलीगल एंड वॉइड। इंग्लिश लॉ में अगर आपने इस तरीके कॉन्ट्रैक्ट किए, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो, चैम्पर्टी कॉन्ट्रैक्ट हो, भले रीजनेबल हो, कोई भी ग्राउंड हो, रीजनेबल अनरीजनेबल, उसे इलीगल और वाइड ही डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन हमारे इंडियन लॉ के अंदर उसे वैलिड माना जाएगा अगर आपका इरादा बोनाफाइड है, योर ऑब्जेक्ट इज बोनाफाइड एंड द अमाउंट एग्रीड इज रीजनेबल। आप शुद्ध नीति से, शुद्ध हेतु से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आप जो भी रकम की डिमांड करते हैं अंदर वो रीजनेबल है, तो वो वैलिड हो सकता है, वैलिड माना जा सकता है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, agreements interfering with administration of justice। agreements interfering with the administration of justice, न्याय की प्रक्रिया में दखलगिरी करने की समझौती अगर आप कर रहे हैं, न्याय की प्रक्रिया में अगर आप इंटरफियर कर रहे हैं, टांग अड़ा रहे हैं, दखलगिरी कर रहे हैं, तो ऐसी एग्रीमेंट्स भी सर इलीगल है, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। हमने कोर्ट के अंदर कोई भी केस किया है तो उस केस के अंदर हमने कोई इन्फ्लुएंस नहीं चलानी है। वी शुड नॉट यूज इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस ऑफ एनी काइंड विद द जजेस और विद द लॉयर्स, मींस ऑफिसर्स ऑफ जस्टिस मींस द लॉयर्स। अगर ऐसा हम करते हैं, कोई इन्फ्लुएंस लगाते हैं विच इज इम्प्रॉपर, लागवक जिसे हम कहते हैं, अगर हम लागवक लगाते हैं, इन्फ्लुएंस लगाते हैं, वो इम्प्रॉपर है, आपकी इन्फ्लुएंस इम्प्रॉपर है, तो सर वो एग्रीमेंट्स अनलॉफुल होगी, उसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर हम इन्फ्लुएंस लगा रहे हैं इम्प्रॉपर तरीके से सर, तो ये हमने क्या किया है सर, वी आर इंटरफियरिंग विद द प्रोसेस ऑफ जस्टिस। जिसे न्याय मिलना चाहिए उसे न्याय नहीं मिलेगा। न्याय के लिए तो हम अदालत में जाते हैं, और हमें न्याय ही ना मिले, हमारे साथ अन्याय हो जाए, ऐसी हम पूरी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करें, इन्फ्लुएंस का उपयोग करके हम फैसला हमारी
फेवर में करवाने की कोशिश करे तो सर वो गलत बात हो जाएगी। जिस व्यक्ति को इंसाफ मिलना चाहिए वो इंसाफ से वंचित रह जाएगा, वैसा नहीं होना चाहिए। सो एनी एग्रीमेंट विच ऑब्स्ट्रैक्ट्स द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ जस्टिस इज अनलॉफुल। न्याय की प्रक्रिया में उसका जो सामान्य तरीका है, सामान्य ऑर्डिनरी प्रोसेस है न्याय प्राप्त करने का, उसमें अगर हम कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं, उसे ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, तो सर वो भी इलीगल है, अनलॉफुल है सर। इस तरीके से हमें कोई एग्रीमेंट करनी नहीं चाहिए। Similarly, a promise to pay for giving false evidence is also against public policy. Similarly, a promise to pay for giving false evidence is also against public policy. यहाँ एक स्टेटमेंट है, एक बंदा है जो इस तरीके से स्टेटमेंट बोलता है कि मेरा नाम है सिकंदर तबाही, पैसों के लिए मैं देता हूं कोर्ट में झूठी गवाही। इस तरीके से भी कुछ फॉल्स एविडेंस, झूठे गवाह क्रिएट किए जाते हैं सर, और पे करके क्रिएट किए जाते हैं अदालत के अंदर। अगर ऐसा किया जा रहा है तो वी आर इंटरफियरिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जिस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए सर वो न्याय से फिर वापस वंचित रह जाएगा। इस तरीके से हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट करनी नहीं। अगर हम फॉल्स एविडेंस भी अदालत में पेश कर रहे हैं तो ये भी क्राइम है सर, ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। झूठी गवाही देने के लिए हम किसी को प्रॉमिस करते हैं कि आप, मैं झूठी गवाही देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको मुझे 50,000 देने पड़ेंगे, 1 लाख देने पड़ेंगे। ऐसा एग्रीमेंट अगर किया जा रहा है तो इट इज ऑल्सो अगेंस्ट सोसाइटी, सोसाइटी के फेवर में नहीं। न्याय तंत्र पे से हमारा भरोसा उठ जाएगा अगर ऐसा हमें पता चले कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से ऐसे रकम लेके अदालत में फॉल्स एविडेंस दे दिया, झूठी गवाही दे दी है सर। तो जैसे ही जनता को पता चलेगी सर, तो ये एक रॉन्ग मैसेज सेंड करता है सोसाइटी को। तो ध्यान रखना चाहिए, इस टाइप की एग्रीमेंट्स से हमें दूर रहना है। हमें तो बिल्कुल ऐसे एग्रीमेंट्स करनी है। अब बात आ रही है सरकारी नौकरी की, सरकारी जमाई बनने की बात आ रही है। एग्रीमेंट्स फॉर सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स। सरकारी जमाई बनने की कितनों की ख्वाहिश होती है, यानी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने की कितनों की ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है। लेकिन अगर ये इलीगल तरीके से प्राप्त करने की एग्रीमेंट अगर आप करते हो सर, इलीगल तरीके से मीन्स शायद रिश्वत देके, ब्राइब देके, कसम करप्शन की, अगर इस तरीके से कोई नौकरी प्राप्त करने के लिए एग्रीमेंट कर रहा है या कोई नौकरी दिलाने के लिए आपको कन्विंस करता है सर, तो ये गलत होगा। सच एग्रीमेंट्स आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये समाज के हित में नहीं है। मीन्स वेयर एन एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू फॉर अ सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेस and the selection of a wrong candidate means an unqualified person is unlawful and void. राइट पर्सन एट द राइट प्लेस की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, क्वालिफाइड पर्सन की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। अनक्वालिफाइड पर्सन बैठ जाएगा तो हम उससे क्या उम्मीद रखेंगे, हम उससे क्या काम लेंगे। एक सरकारी नौकर जो क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, हम उससे बहुत उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि नहीं ये हमारा काम करके देगा, लेकिन वहां कोई अनक्वालिफाइड पर्सन बैठ जाए तो फिर हमारा काम होने से रहा सर। सो एक नॉलेजेबल पर्सन, एक क्वालिफाइड पर्सन की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको वो नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन इन्फ्लुएंस का उपयोग करके या रिश्वत देके, करप्शन का उपयोग करके, ब्राइब का उपयोग करके अगर कोई इस तरीके से नौकरी प्राप्त करने की बात कर रहा है, पैसों की लालच देके अगर कोई नौकरी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, तो हम सिलेक्शन प्रोसीजर में इंटरफियरेंस कर रहे हैं। वी आर इंटरफियरिंग इन द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑल्सो। तो बेस्ट क्वालिफाइड पर्सन को के साथ क्या हो जाएगा सर, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसके साथ इनजस्टिस हो जाएगा, अनफेयर हो जाएगा, बायस हो जाएगा एक तरीके से। तो इस तरीके से अगर रॉन्ग सिलेक्शन हो रहा है, इस टाइप की एग्रीमेंट अगर की जा रही है सर, ये गलत होगी। फॉर एग्जाम्पल, अजय promises to pay rupees 4 lakhs to Tabrez in order to induce him to retire so as to provide place for Ajay's appointment to the public office held by Tabrez. Agreement is void. अजय 4 लाख रुपए देने के लिए प्रॉमिस करता है तबरेज को। तबरेज जो है थोड़े ही समय में रिटायर होने वाले हैं, समझ लीजिए। तो उससे कन्विंस कर देता है कि तू रिटायर हो जा, तेरी जगह पे मैं आ जाता हूँ, मुझे नौकरी दिलवा दे। तू मुझे नौकरी दिलवाएगा, मैं तुझे 4 लाख रुपए दे दूंगा। इस तरीके से एग्रीमेंट की जा रही है। अब तबरेज के हाथ में थोड़ी ना है किसी को नौकरी दिलवाने का। सरकारी नौकरी की बात हो रही, पब्लिक ऑफिस, गवर्नमेंट जॉब समझ लीजिए। तो गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए एक इंडिविजुअल थोड़ी सक्षम है। इस तरीके अगर एग्रीमेंट होने लगे
और अगर मिल जाता है, अजय को नौकरी भी मिल जाती है विद द इन्फ्लुएंस ऑफ तबरेज, तो सर ये एग्रीमेंट वॉइड है। पहले तो ऐसे एग्रीमेंट ही नहीं करनी चाहिए, पहला पॉइंट ये है। मान लीजिए अजय को नौकरी मिल गई विद द हेल्प विद द सपोर्ट ऑफ तबरेज, मान लीजिए ऐसा हो गया, तो अजय बाद में तबरेज को 4 लाख रुपए न दे तो प्रॉमिस टू पे है, दिए नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस टू पे। अभी 4 लाख दिए नहीं, देने का वादा है, वादा तोड़ा भी जा सकता है, वादा तोड़ा भी जा सकता है। तो तबरेज को 4 लाख बाद में देने की बात हो रही। मान लीजिए अजय की अपॉइंटमेंट हो गई, ठीक है, लेकिन फिर अजय ने 4 लाख नहीं दिए, तो तबरेज क्या पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करेंगे कि अजय को मैंने इलीगल तरीके से, अनक्वालिफाइड पर्सन है, फिर भी मैंने उससे सरकारी नौकरी दिलवाई है, उसने मुझे वचन दिया था 4 लाख रुपए देगा अगर मैं ऐसा करके दूंगा तो, आज उसको नौकरी मिल चुकी है इलीगल तरीके से, फिर भी वो मुझे 4 लाख रुपए नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले किसका स्वागत होगा पुलिस स्टेशन में? स्वैग से स्वागत होगा सर वहां पे तबरेज जी का। So such agreements are not in favor of society. They are opposed to public policy. The agreement is considered as void agreement. Similarly, उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है, आरव promises to pay आरुष rupees 1 lakh. आरव promises to pay आरुष rupees 1 lakh if आरुष secures him an employment in public services. वैसा ही एग्जांपल है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 1 लाख रुपए देता है और वो कहता है कि आप मुझे नौकरी दिलवा दो तो मैं आपको 1 लाख दूंगा। 1 लाख दे दिए हो, फिर नौकरी नहीं दिलवाई तो क्या कर लेंगे? तो ये सिचुएशन है, ये एग्रीमेंट इलीगल है, हम पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, कंप्लेंट करने जाएंगे तो हमारा पहले स्वागत होगा। रिश्वत देने वाला और रिश्वत स्वीकारने वाला दोनों ही गुनहगार है, सबसे बड़ा गुनहगार रिश्वत देने वाला है दोस्तों। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ पेरेंटल राइट्स, गार्डियनशिप, पेरेंटल राइट्स के ऊपर ये पॉइंट है। दुनिया की कोई भी व्यक्ति अपना गार्डियनशिप राइट ट्रांसफर नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी चीज, एनी एग्रीमेंट बार्टरिंग दिस राइट टू गार्डियनशिप इज वॉइड। आप अपना पेरेंटल राइट किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ एग्रीमेंट। अगर हम ऐसी एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसमें हम हमारा गार्डियनशिप यानी कि पेरेंटल राइट ट्रांसफर कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बार्टर कर रहे हैं, तो वैसी एग्रीमेंट को भी वॉइड माना गया है। एक पेरेंट्स के अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है सर? पेरेंट्स में दो चीजें आती है, फादर और मदर। तो पेरेंट्स में सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी होती है बच्चों को बड़ा करने की? सर, द पेरेंट इज द गार्डियन ऑफ हिज माइनर चाइल्ड। सबसे पहले फादर आता है सर उसमें फर्स्ट पोजीशन पे। आफ्टर फादर द राइट ऑफ गार्डियनशिप वेस्ट इन द मदर। फादर क्यों सर? ही इज द कर्ता ऑफ द फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उसे कर्ता माना गया है। अगर ये इनकम अर्न नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा? इसलिए फर्स्ट पोजीशन पे है दोस्तों। फादर नहीं हो घर के अंदर तो दूसरी पोजीशन किसकी आती है माइनर चाइल्ड को संभालने के लिए, ग्रो अप करने के लिए, नरिशमेंट के लिए? सर, मदर की आती है। अब ऐसी एग्रीमेंट की जाए जहां पे गार्डियनशिप, पेरेंटल राइट को बार्टर करने, शेयर करने की बात की जाए, तो ऐसी एग्रीमेंट्स भी समाज के हित में नहीं है, दे आर कंसिडर्ड एज वॉइड। एग्जांपल लेते हैं, एक लैंडमार्क केस है इसके ऊपर, गिड्डू नारायण सी वर्सेस मिसेस एनी बिसेंट का केस है। देखते हैं, फादर का केस है। अ फादर हैविंग 2 minor sons agreed to transfer his guardianship in favor of Mrs. Annie Besant and also agreed not to cancel the transfer. जो गिड्डू नारायण सिंह है, जो फादर है, वो अपने 2 माइनर सन को उसका ट्रांसफर देते, उसकी गार्डियनशिप का ट्रांसफर देते। यानी अब ये जो फादर है वो उसका फादर नहीं है, बच्चे उनके साथ नहीं रहेंगे, गार्डियनशिप ट्रांसफर की जा रही, पेरेंटल राइट ट्रांसफर की जा रही है। अब उसका पेरेंट कौन होगा सर? मिसिस एनी बिसेंट। यानी बच्चों को अब संभालेगा कौन? वही उसकी पिता है, वही उसका माता है, अब यूं समझ लीजिए। तो गिड्डू नारायण सिंह अब इस एग्रीमेंट की तौर पे वो फादर का अपना हक छोड़ रहे हैं, और हक किसे दे रहे हैं सर? एनी बिसेंट को दे रहे हैं। अब वापिस अंदर ऐसा एक प्रोविजन भी कर रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट, ये ट्रांसफर वो कैंसिल नहीं करेंगे फ्यूचर में। लेकिन बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, याद तो आएगी, इमोशनल सिचुएशन है, बच्चों की याद आने लगी, तो उन्होंने क्या किया? ही फाइल्ड अ केस फॉर रिकवरी मींस कस्टडी ऑफ द सन्स, माइनर सन्स। बच्चे वापिस डिमांड की उसने, उसकी कस्टडी, बच्चे मुझे वापिस चाहिए, मैं अपना वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता हूँ जो मैंने किया था, मैंने जो गार्डियनशिप ट्रांसफर किया था, आई वांट टू रिवोक दैट ट्रांसफर, मुझे वो कैंसिल करना है, विड्रॉ करना है। कोर्ट में जाके अपील करता है और जजमेंट उसके फेवर में आता है, और यही उसका रीजन है
कि एक व्यक्ति अपना पेरेंटल राइट दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। जजमेंट किसके फेवर में आया? गिड्डू नारायण सिंह के फेवर में आया। द कोर्ट हेल्ड दैट ही हैड राइट टू रिवोक, उसका अधिकार है, वो चाहे तो अपना ये अधिकार का उपयोग करके ये ट्रांसफर को वो कैंसिल कर सकता है और अपने बच्चों को प्राप्त कर सकता है। ऐसा हुआ इस केस में। एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोलीज, दुनिया की कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मोनोपोली नहीं दे सकता है। नो पर्सन कैन क्रिएट मोनोपोलीज फॉर अदर। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मोनोपोली देने लग गया तो हर एक शेरी के अंदर, हर एक सोसाइटी के अंदर मोनोपोली के किस्से शुरू हो जाएंगे कि पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ मैं ही सब्जी बेचूंगा और कोई नहीं बेचेगा। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर मैं ही पिज्जा का काम करूंगा, पिज्जा बेचूंगा। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर मैं ही जूते चप्पल बेचूंगा, शूज की शॉप खोल सकता हूं। अगर इस तरीके से मोनोपोली दे दी गई तो सर आपको पता है मोनोपोली की सिचुएशन में क्या होता है? प्राइस राइज हो जाता है सर, चीजें महंगी हो जाएगी और हमें फिर महंगी चीजें खरीदनी पड़ेगी। इफ मोनोपोली इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एग्रीमेंट, सच एग्रीमेंट्स आर, इफ दे आर अपोज टू पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित में जारी न हो, जनता को नुकसान हो, ऐसा एग्रीमेंट्स किया जा रहा हो, ऐसा मोनोपोली क्रिएट किया जा रहा हो, तो सर ये भी वॉइड बना जाएगा। केस देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ झेलम वर्सेस हरिचंद, एक लोकल बॉडी है झेलम सिटी की। वहां पे लोकल बॉडी ने क्या किया? ग्रांटेड अ मोनोपोली टू हरिचंद, एक इंडिविजुअल पर्सन को, एक व्यक्ति को मोनोपोली ग्रांट कर दी, दे दी गई टू सेल वेजिटेबल इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर सिर्फ वही वेजिटेबल सेल कर सकता है। सर ऐसी एग्रीमेंट नहीं कर सकते हम, जो की गई थी। अगर ऐसी एग्रीमेंट की भी जाती है तो वो वॉइड है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, शादी की प्रक्रिया में इंटरफियर करना, ऑब्स्टेकल क्रिएट करना। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज इज वॉइड, कोई व्यक्ति शादी करना चाह रहा हो और हम उसे शादी करने से रोकने वाली एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, रिस्ट्रेन करती हुई एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, उसे स्टॉप कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं, उस पर प्रोहिबिशन डाल रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस रख रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो सर हम एक इलीगल काम कर रही हूं, समझ लीजिए। सो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज इज वॉइड, अगर हम किसी को मैरिज करने से रोकने वाली एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो भी वॉइड है, समझ लेना अच्छे से। सेक्शन 26 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कह रहा है? एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ पर्सन अदर देन अ माइनर इज वॉइड। अगर हम किसी बंदे को मैरिज करने से रोक रहे हैं, अगर वो बंदा माइनर न हो तो, यानी अगर मेजर पर्सन को हम शादी करने से रोक रहे हैं या शादी करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसी एग्रीमेंट्स को वॉइड एग्रीमेंट्स माना गया है। अगर आप मेजर पर्सन हो गए हैं तो मैरिज इज योर फंडामेंटल राइट। दुनिया की कोई अदालत या कोई भी ताकत आपको मैरिज करने से नहीं रोक सकती अगर आप मेजर पर्सन हैं तो। So any agreement, if they are interfering or they are restraining their choice of marriage, then such agreements are considered as void agreements. मीन्स आप अगर शादी करना चाह रहे हैं और शादी करने से आपको कोई एग्रीमेंट रोक रही है, एग्रीमेंट में ऐसी कंडीशंस रख दी गई है जिससे आप शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी ये फ्रीडम पे भी स्टॉप कर दिया गया, रोक दिया गया, इंटरफियर किया गया आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो सर आप उस एग्रीमेंट को हम क्या मानेंगे सर? वहां चैलेंज कर सकते हैं आप, उस एग्रीमेंट को वॉइड एग्रीमेंट माना जा सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ नाम बदले हैं, ये काल्पनिक एग्जाम्पल है। अक्षय, ये रियल रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं है, जो नाम रखे गए काल्पनिक है। अक्षय promised to marry none else except Ravina and in default pay her a sum of rupees 10 lakhs। अक्षय जो है मैरिज की प्रॉमिस करता है कि वो रवीना के सिवा और किसी से मैरिज नहीं करेगा। अगर और किसी और से मैरिज कर लेता है तो 10 लाख रुपए वो देगा, उसको रवीना को देगा। यानी अक्षय ने क्या किया है? अपने आप को सेल्फ रिस्ट्रेन कर रहा है मैरिज करने से, अपने आप पे रिस्ट्रिक्शंस डाल रहा है कि वो सिर्फ रवीना से ही शादी करे, ऐसा रिस्ट्रेन वो अपने आप रख रहा है। तो हम अपने आप भी रिस्ट्रेन क्रिएट नहीं कर सकते, अपने आप के ऊपर ऐसी एग्रीमेंट नहीं कर सकते। सेल्फ रिस्ट्रेन वाली एग्रीमेंट भी सर वैलिड नहीं मानी जाएगी। अक्षय मैरिड ट्विंकल, कहानी में ट्विस्ट आया। अक्षय मैरिड ट्विंकल
एंड रवीना शूड अक्षय फॉर रिकवरी ऑफ ₹10 lakhs. નામ બદલેલ છે, આ પાત્રો બધા કાલ્પનિક છે. એગ્રીમેન્ટ ઇન રિસ્ટ્રેન ઓફ મેરેજ એન્ડ એઝ સચ void. रवीना कैनॉट रिकवर द सम प्रॉमिस्ड. यहाँ पे अक्षय ने भले सेल्फ रिस्ट्रेंट रखा हो अपने ऊपर, लेकिन एक तरीके से मैरिज की जो उसकी फंडामेंटल राइट है, उसका जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है सर, उसके ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शंस रख दिए जाए तो सर वो गलत होगा. तो यहाँ पे ऐसी एग्रीमेंट्स जो विच आर इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज अगर रख दी जाए सर, की जाए तो वो वॉइड है. यहाँ पे रवीना भी सक्सेसफुली रिकवरी नहीं कर पाएगी सर, कि 10 लाख रुपए की रिकवरी नहीं कर पाएगी. अक्षय भी इमोशनल हो सकता है, तुझे मुझसे प्यार था या पैसों से प्यार था, ऐसी बातें हो सकती है. दूसरा इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल देता हूं. एक बंदा दूसरे बंदे को ऐसा कह दे, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से यूं कह दे कि तू प्रॉमिस कर, तू लाइफ टाइम के लिए मैरिज नहीं करेगा, वचन दे कि आजीवन आप मैरिज नहीं करोगे. ओहो हो, बहुत बड़ा प्रॉमिस हो जाएगा अगर आप प्रॉमिस दे भी देते हो. अगर प्रॉमिस देते हो तो भी वो एग्रीमेंट वॉइड है, बिकॉज यू आर रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन फॉर डूइंग अ मैरिज. ऐसे रिस्ट्रेंट्स, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हमें नहीं रखनी चाहिए. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज सेक्शन 26 था. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज सेक्शन 27. दुनिया की कोई भी ताकत आपको ट्रेड, बिजनेस या प्रोफेशन करने से नहीं रोक सकती है. नो पर्सन इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू टू डू अ लॉफुल बिजनेस, लॉफुल ट्रेड और लॉफुल प्रोफेशन. मैंने शब्द यूज किया लॉफुल. आप भारत के अंदर कोई भी लॉफुल बिजनेस कर सकते हैं, लॉफुल प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं. अगर उसको करने के लिए आपके ऊपर रिस्ट्रेन रखा जाए, रोक टोक लगाई जाए, इंटरफियर किया जाए आपके साथ, ऐसी एग्रीमेंट की जा रही है, तो सर वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट मानी जाएगी. दे आर नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट इफ दे आर रिस्ट्रेनिंग यू टू डू एनी टाइप ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन. आप भारत के अंदर कोई भी स्वरूप का बिजनेस कर सकते हैं. सिर्फ एक चीज का आपको, एक कंडीशन का ध्यान रखना है. वॉट एवर ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन यू आर डूइंग मस्ट बी लॉफुल, मस्ट बी लीगल. लीगल बिजनेस कर सकते हैं, लीगल प्रोफेशन में एंटर कर सकते हैं. उल्टा कर दें तो इलीगल कोई काम करना नहीं है. बाहर से देखते हैं, दिखती है हमें होटल, लेकिन अगर मान लीजिए अंदर एंटर हुए तो पता चला ये होटल में तो बिकती है दारू की बोतल. तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों. इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए. टू सेल लिक्योर इन इंडिया इज एन इलीगल एक्टिविटी. दारू का धंधा करना सर कुछ स्टेट्स के अंदर इलीगल एक्टिविटी माना गया है. गुजरात स्टेट पकड़ लीजिए, टू सेल लिक्योर इज इलीगल इन गुजरात स्टेट. तो ये काम हमें बिल्कुल नहीं करना है. गुजरात स्टेट की हम बात कर ले तो कुछ स्टेट में वैलिड है, लेकिन कुछ स्टेट में इनवैलिड है. वैसा बिजनेस हमें नहीं करना चाहिए. स्मगलिंग करना, डकैती करना, रॉबरी करना, वगैरह वगैरह वगैरह. सो ये सारी चीजें जो इलीगल है वो हमें नहीं करना चाहिए. कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहिए जो इलीगल है. एग्रीमेंट इन